Good morning, students. Today I am going to present the last poem from your syllabus, the syllabus of 12th class, and this is the name of this poem, A Boy's Song. एक लड़के का गीत, बाल गीत के नाम से this poem has been composed by this poet Wilfred Bilson Gibson. And this poem, it is based on this word, freedom. Freedom, it is enjoyed by all living things. So poet, he wants this freedom for birds, for these birds. This poet wants this freedom for these birds. So this is based on this particular bird, and you can say the theme of this poem is based on the freedom of birds. Poet, he is a great advocate of freedom for these birds, and this is based on nature also. According to poet, there is a connection between nature and birds. These birds, they increase the beauty of nature when we see them flying free. So this is based on nature also, and poet wants to give a message to humanity for human beings. Poet wants to give a message to humanity that man must not catch these birds or animals. Instead of catching, he should leave them flying freely, because the sight of flying free of a bird, it increases, it adds to the beauty of nature. So this poem, it is based on the freedom of birds, freedom of animals, and these birds or these animals, they are found in nature, they are the part of nature, and poet is trying to give a message to humanity, to people. What kind of message? That we should not try to catch, we should not try to trap these birds or animals in cages or in a snare. So this is the theme of this poem. Let's have the recitation of this poem. Come with me. Because I set no snare, but leave them flying free, all the birds of the air belong to me, from the bluetit on the slow to the eagle on the height, uncaged they come and go for my delight. And so the sunward way I soar on the eagle's wings, and in my heart all day the bluetit sings. This is called the recitation. When you read a poem before students, this is called recitation. And recitation, it creates difference between prose and poetry. Recitation is necessary only in poetry, not in prose. And recitation increases the beauty of a poem. So we have done a recitation. इसका हमने पठन कर लिया है. Now let's see the rhythm. Rhythm क्या है इसकी? लय देखते हैं, इसमें लय क्या आई है? स्नेह एयर, ये ए हो गया, ये भी ए हो गया, क्योंकि एक जैसी साउंड आ रही है. स्नेह एयर, फ्री, ये बी हो गया, मी फ्री, ये भी ई पे खत्म हो रहा है, ये भी ई पे खत्म हो रहा है. ए बी
स्लो ऊपर जैसी कोई आवाज है क्या? नहीं है। स्लो ओ पे खत्म हो रहा है, सी। और गो ये भी सी। हाइट इसको डी दे दिया हमने, और डिलाइट ये भी डी हो गया। तो ए बी सी डी वे ऊपर जैसी कोई आवाज है क्या? नहीं है, तो इसको हमने ई दे दिया। विंग्स एफ, डे और वे मैच कर रहा है ई, और सिंग्स ये भी कौन सी हो गई? एफ। तो हमारी राइमिंग स्कीम क्या बनी इसकी? राइमिंग स्कीम क्या बनी है इस पोएम की? ए बी सी डी ई एफ, ये राइमिंग स्कीम है। क्योंकि जो रिदम देख रहे हैं आप, लय देख रहे हैं, अंत का जो शब्द है उसकी ध्वनि कौन से अक्षर से मैच कर रही है? तो पहले वाले की ध्वनि किससे मैच कर रही है? चौथे वाले से। दिस इज कॉल्ड रिदम और राइमिंग स्कीम। तो आपको कविता की रिदम का मालूम पड़ा, लय का, राइमिंग स्कीम का मालूम पड़ा। रेसिटेशन के बारे में मैंने बताया कि रेसिटेशन, पठन, रेसिटेशन जरूरी होता है किसमें? पोएट्री में, प्रोज में रेसिटेशन का कोई काम नहीं है। और मैंने आपको यह बता दिया है कि यह कविता आधारित है किस पर? फ्रीडम पर। इसकी जो थीम है, विषय वस्तु, वो फ्रीडम है। फ्रीडम किसकी? बर्ड्स की, पक्षियों की फ्रीडम की बात कर रहा है। कविता आधारित है प्रकृति पर। लेखक कहता है कि प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाने का काम करते हैं बर्ड्स, पक्षी। जब इन पक्षियों को आकाश में खुले रूप से उड़ने दिया जाता है तो प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाने का काम करते हैं पक्षी। और तीसरी मैंने लिखा है ह्यूमैनिटी। ये कविता ह्यूमैनिटी में कौन है? ह्यूमन बींग्स, मानव, पीपल, लोगों को एक संदेश देने का काम कर रही है कि हमें पक्षियों को और जानवरों को पिंजरों में पकड़ना नहीं चाहिए, उनको भी फ्री कर देना चाहिए, फ्रीडम। क्योंकि ये फ्रीडम पर आधारित है, इन पक्षियों की स्वतंत्रता पर, जानवरों की स्वतंत्रता पर ये कविता आधारित है। चलिए अब इसकी हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं, फिर मैं थोड़ा सा आपको इंग्लिश में इसकी समरी देके बताऊंगा। बिकॉज आई यहां पे कौन है? पोएट हमारा विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन कह रहा है क्योंकि मैंने, आई सेट, मैं नहीं करता हूं। सेट मीन्स स्थापित करना, मैं स्थापित नहीं करता हूं। नो कह रहा है। आई डू नॉट सेट, मैं नहीं लगाता हूं स्नेयर का मतलब पिंजरा, केज। स्नेयर का मतलब क्या है? पिंजरा। लेखक कह रहा है क्योंकि मैं पिंजरा नहीं लगाता। अकॉर्डिंग टू पोएट, ही सेज ही डजंट सेट एनी ट्रैप, he doesn't set a cage to catch animals or to catch birds। क्योंकि मैं जानवरों को और पक्षियों को पकड़ने के लिए सेट नहीं करता, मैं नहीं लगाता क्या चीज? पिंजरा। बट लेकिन मैं क्या करता हूं? देखिए, लीव दैम, मैं उनको छोड़ देता हूं। उनको, दैम, अगली लाइन में पता लगेगा किन को छोड़ देता है। बट लीव दैम, मैं उनको छोड़ देता हूं। फ्लाइंग, उड़ने के लिए, मैं उनको उड़ने के लिए छोड़ देता हूं। फ्री, स्वतंत्र। कह रहे हैं मैं उनको स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता हूं क्योंकि मैं उनको पकड़ने के लिए सेट, मैं उनको पकड़ने के लिए कोई पिंजरा नहीं सेट करता हूं, कोई पिंजरा नहीं लगाता हूं, बल्कि मैं उनको छोड़ देता हूं स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, स्काई, एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट। कभी कहता है ऑल द बर्ड्स, सारे पक्षी, तो यहां दैम किसके लिए आया है? पक्षियों के लिए। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, आसमान के सारे पक्षी। एटमॉस्फेयर, वातावरण के सारे पक्षी। एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर एक ही चीज है। वातावरण के सारे की सारे पक्षी, सभी पक्षी बिलोंग टू मी, मेरे हैं। बिलोंग मीन्स संबंध रखना, उनका संबंध मुझसे है। और मुझसे यहां पे कौन है? विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। तो कह रहा है कि क्योंकि मैंने पिंजरा नहीं लगाया है पक्षियों को पकड़ने के लिए,
बल्कि मैंने छोड़ दिया है उनको स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, आसमान के सारे पक्षी बिलोंग टू मी, वो मेरे हैं, उनका संबंध मुझसे है। कभी कहना चाहता है कि मेरे पास कोई पिंजरा नहीं है जिसमें एक तोता बैठा हुआ है और मैं कहूं कि ये तोता मेरा है। मेरे पास कोई पिंजरा नहीं है जिसमें एक कबूतर बैठा हुआ है और कुछ चिड़ियाएं बैठी हुई हैं, मैं कहूं कि ये चिड़ियाएं मेरी हैं, ये कबूतर मेरा है, ये तोता मेरा है। नहीं, बिकॉज ही डजंट हैव एनी केज, उसके पास पिंजरा है ही नहीं। पिंजरा नहीं है तो उसने क्या किया, सारे पक्षियों को स्वतंत्र छोड़ दिया। तो किसी एक पर्टिकुलर पक्षी की वो नहीं कह रहा है कि ये पक्षी मेरा है। जैसे हम किसी कुत्ते को पालते हैं तो हम कहते हैं ये कुत्ता मेरा है, या कोई तोता पालता है तो वो कहता है ये मेरा तोता है, देखो पिंजरे में। तो कभी के साथ मेरा शब्द नहीं है, किसी एक पक्षी के साथ, किसी एक पर्टिकुलर बर्ड के साथ वो नहीं कहता ये मेरा है। वो कह रहा है कि आसमान में सारे पक्षी, क्योंकि मैं उनको पकड़ता नहीं हूं, वो स्वतंत्र रूप से उड़ते हैं, तो सारे पक्षियों का संबंध मुझसे है। फ्रॉम द ब्लूटिट, एक पक्षी का नाम लिया है उसने, ब्लूटिट एक चिड़िया है, नीले रंग की चिड़िया जिसका गर्दन पे थोड़ा सा पीला निशान रहता है और नीले कलर की होती है। फ्रॉम द ब्लूटिट ऑन द स्लो, स्लो मीन्स बुश, झाड़ी, थॉर्न, थॉर्नी बुश, श्रब भी बोलते हैं। श्रब मीन्स झाड़ी, थॉर्नी बुश मीन्स कांटेदार झाड़ी। तो स्लो क्या है, कांटेदार झाड़ी है। जैसे बेर का आप पेड़ मान लीजिए, तो जो कांटेदार झाड़ियां होती हैं, बेर आपने देखे छोटे छोटे से बेर, उस झाड़ी की बात की है। फ्रॉम द ब्लूटिट, छोटी सी चिड़िया से लेकर ऑन द स्लो, जो कहां बैठती है, स्लो पर, झाड़ी पर बैठती है, श्रब पे। और वो झाड़ी कैसी है, थॉर्नी, कांटेदार झाड़ी। कांटेदार झाड़ी पर बैठने वाली चिड़िया से लेकर टू द ईगल ऑन द हाइट, हाइट में उड़ने वाले, ऊंचाई पर उड़ने वाले ईगल। ईगल कौन सा होता है, बाज, बाज जिसे कहते हैं हम, ईगल, बाज जो ऊपर बहुत ऊंचा उड़ता है। तो लेखक कह रहा है ब्लूटिट, छोटी सी चिड़िया से लेकर टू द ईगल, और ईगल बड़ा पक्षी होता है, बड़ा पक्षी होता है, ये छोटी है ये बड़ा। तो छोटे पक्षी से लेकर बड़े पक्षी तक, और जमीन से लेकर आसमान तक। स्लो, ये जमीन पर उगने वाली झाड़ी है, इस जमीन की झाड़ी पर बैठती है कौन सी, ब्लूटिट। और ईगल, ईगल ऊंचा उड़ता है आकाश में, बहुत ऊंचा। तो लेखक कह रहा है कि जमीन पर उगने वाली झाड़ी से लेकर ऊपर आसमान में उड़ने वाले ईगल तक, अनकेज्ड, अनकेज्ड मीन्स फ्री, स्वतंत्र, स्वतंत्र, दे कम एंड गो। दे यहां किसके लिए आ रहा है, इन दोनों के लिए, ईगल के लिए और ब्लूटिट के लिए, सारे पक्षियों के लिए। दे कम एंड गो, स्वतंत्र रूप से वो आते और जाते हैं। फॉर माई डिलाइट, डिलाइट मीन्स हैप्पीनेस, प्रसन्नता। और मैं उनको स्वतंत्र उड़ते देखकर, फॉर माई डिलाइट, मेरी आत्मा बड़ी प्रसन्न होती है। तो लेखक कभी कह रहा है कि उसकी जो सोल है, उसकी आत्मा, उसका माइंड है, मन बहुत प्रसन्न होता है जब वो छोटी चिड़िया से लेकर ऊपर उड़ने वाले बाज तक के पक्षियों को देखता है कि वो स्वतंत्र रूप से भ्रमण कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से इधर से उधर आते और जाते हैं। उन स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए पक्षियों को देखकर कभी बहुत ही डिलाइट, कभी बहुत ही प्रसन्नता महसूस करता है। ही फील्स हैप्पीनेस व्हेन ही वॉचेस देम फ्लाइंग फ्रीली फ्रॉम अर्थ टू द स्काई, पृथ्वी से लेकर आसमान तक जब उनको स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए देखता है तो बड़ा प्रसन्न होता है। एंड सो द सनवर्ड वे, सनवर्ड मीन्स टूवर्ड्स द सन, सनवर्ड का मतलब क्या है, टूवर्ड्स सन, सूर्य की तरफ। एंड सो द सनवर्ड वे, और इसलिए सूर्य के रास्ते की तरफ, सूर्य की तरफ, आई सोर, सोर मीन्स फ्लाई, मैं भी उड़ता हूं, मैं भी उड़ान भरता हूं। कभी कह रहा है कि सूर्य की तरफ मैं भी उड़ान भरता हूं, ऑन द ईगल्स विंग्स, बाज के पंखों के माध्यम से। जब बाज उड़ करके जाता है ऊपर आसमान में ऊंचाई तक, तो लेखक कह रहा है मैं इतना प्रसन्न होता हूं, इतना खुश हो जाता है मेरी आत्मा और मेरा मन, मुझे भी महसूस होता है कि मैं भी उड़कर जा रहा हूं, मेरा मन उड़कर जा रहा है।
बाज के पंखों की मदद से मेरा मन भी कहां उड़ के जा रहा है, सूर्य की तरफ, मैं भी बहुत ऊंचाई पे उड़ रहा हूं। तो मीन्स व्हेन पोएट फील्स एक्सट्रीमली हैप्पी ही फाइंड्स दैट ही हिमसेल्फ इज ऑल्सो फ्लाइंग ऑन ईगल्स विंग्स एंड ही इज गोइंग टुवर्ड्स सन। वो सूर्य की तरफ जा रहा है, उसको ऐसा महसूस होता है जब वो बहुत अधिक प्रसन्न हो जाता है। एंड इन माई हार्ट, और मेरे हृदय में, हार्ट मेरे हृदय में, ऑल डे पूरे दिन भर, द ब्लूटेड सिंग्स, जो ब्लूटेड है बहुत मधुर गाने गाती है, बहुत मीठे मीठे गाने गाती है, इसके मीठे गाने मेरे हृदय में पूरे दिन भर भरे रहते हैं। कभी कहना चाहता है कि मुझे बहुत अच्छी लगती है ब्लूटेड की आवाज, उसके चहचाने की आवाज बहुत मधुर आवाज है, तो मैं इतना प्रसन्न हो जाता हूं उसकी आवाज को सुनकर कि मेरे हृदय में हमेशा मुझे इसकी आवाज सुनाई पड़ती है। किसकी? ब्लूटेड की आवाज मुझे हमेशा सुनाई पड़ती है। तो कभी की प्रसन्नता, जब बहुत अधिक प्रसन्न होता है कभी उड़ते हुए पक्षियों को देखकर, तो वो महसूस करता है वो स्वयं भी उड़ करके जा रहा है ईगल्स विंग्स, ईगल की पंखों पर वो भी उड़ करके जा रहा है उसको, क्योंकि वो बहुत अधिक प्रसन्न है। और बहुत अधिक प्रसन्नता में कभी ऐसा महसूस करता है कि मेरा हृदय भरा हुआ है, मेरा मन भरा हुआ है, किससे? ब्लूटेड के गानों से। तो कभी दिन भर ब्लूटेड के गानों को अपने हृदय में सुनता रहता है, अपने मन में सुनता रहता है। तो ये कवि का प्रकृति के प्रति और पक्षियों के प्रति प्रेम है। इट इज एन अट्रैक्शन ऑफ पोएट टुवर्ड्स बर्ड्स एंड नेचर एंड ही क्लियर्स दिस बॉन्ड। बॉन्ड मीन्स बंधन, रिलेशन, संबंध, अटैचमेंट, तो वो अपने संबंध को जाहिर करता है, अपने रिश्ते को जाहिर करता है। किनके साथ? पक्षियों के साथ। तो एक तो वो पक्षियों को स्वतंत्र उड़ने देना चाहता है, कोई पिंजरा उसने नहीं लगाया है। दूसरा, छोटी सी चिड़िया से लेकर बड़े पक्षी तक सारे जो जमीन से और आसमान तक उड़ते रहते हैं, वो सारे पक्षी उसके हैं और उसको प्रसन्नता प्रदान करते हैं। फिर इतना अधिक प्रसन्न हो जाता है कि वो महसूस करता है कल्पनाओं में कि मैं भी ईगल की पंख पे बैठकर उड़ के जा रहा हूं, और दिन भर उसको ऐसा लगता है कि मेरे हृदय में पक्षी जो ब्लूटेड है वो गाने गा रही है, हृदय उसका गानों से भरा हुआ है। तो ये इसकी हिंदी व्याख्या मैंने आपके लिए की है। अभी इंग्लिश की एक्सप्लेनेशन भी आप देखिए, जिससे आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा क्रिएट होगा अंग्रेजी के प्रति। उससे पहले मैं चाहता हूं कि मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे 1300 सब्सक्राइबर हो गए हैं, लेकिन 1300 के अलावा 1300 ही ऐसे हैं जो मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। इसलिए उनसे मेरी अपील है, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड यू कैन फाइंड लॉट्स ऑफ वीडियोज इन द प्लेलिस्ट ऑफ माय यूट्यूब चैनल। तो आप मेरे इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब कर लें और वहां पे बहुत सारी वीडियोज आपको मिलेंगी कक्षा 12 की। सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन होल दिस पोएम इन इंग्लिश। जस्ट give me your ears and follow my words. Try to understand the theme of this poem in English also. इस की विषय वस्तु को आप अंग्रेजी में भी समझने की कोशिश कीजिए। तो विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, he is a great advocator of freedom and he wants this freedom for all the birds and all the animals. Because of this, he started his poem by the line that I do not set any kind of cage, I do not set any kind of snare, because poet does not want to catch any bird, poet does not want to catch any animals. Why? Because he loves watching them fly freely. The sight of flying freely of these birds, it creates happiness in the heart and mind of the poet. Poet is very happy whenever he watches these birds flying freely in the atmosphere or in the sky. He says all those birds which fly freely in the sky, they all belong to me, because I cannot say that this particular bird belong to me. A person who catches a bird in a cage, he can say that this particular bird belong to me, but poet, he doesn't catch
he doesn't set any trap, so he says all the birds which fly in the sky, they all belong to me. And again he says from the blue tit, from a small bird which sits on the slough, on the bush, from that bird to the eagle. Eagle, it is a little bit bigger bird than blue tit, and it flies so high in the sky. So poet says from the blue tit on the earth till the eagle which flies so high in the sky, all these birds, they belong to me. And poet is happy when he sees them flying freely. At last poet is so extremely happy that he himself feels, I am also soaring, I am also flying towards sun with the help of eagle's wings, because he is extremely happy in imagination. In his imagination he imagines that he is also flying, and he imagines the melodious songs, the melodious sound of blue tit in his heart, because he loves these birds or these animals so much. And this is poet's love, that he feels them all the time in his heart or in his mind. So this is English explanation. I hope all of you have understood what is explained by me. So यहीं पर हम रुकते हैं. आपसे एक मैं समर्थन चाहूंगा कि जो 1300 लोग जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड देन यू कैन ओपन द प्लेलिस्ट. जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, केवल वही मेरी प्लेलिस्ट को खोल सकते हैं, और वहां पे कक्षा 12 की पूरी रेनबो बुक मैंने कंप्लीट करा दी है. सारे लेसन्स हो गए हैं, सारी पोएम्स हो गई हैं, क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, एवरीथिंग हैज बीन फिनिश्ड फ्रॉम रेनबो बुक. सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर आप रेनबो बुक की स्टडी करिए मेरे साथ. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर मिलेंगे अगले वीडियो में.